Before the start of Yatra, it is the security of Yatra, and this year there are unprecedented security measures which have been put in place. And it starts from here. This is the Nunwan base camp in Pahalgam, and here Yatris will be frisked, their RFIDs will be checked. The whole route is being guarded by the BSF and the CRPF, and beyond this camp, then it would be the Indo-Tibetan Border Police, while as the army will be dominating these heights, these mountains and jungles. Remember 2 months back, there was a horrific terror attack here in Pahalgam. Since then, government is not taking any chances. This year, 480 additional companies are being deployed for the Yatra duty, besides the existing security structure which is already deployed in Kashmir. The route to the cave shrine of Amarnath is literally dotted with troops. In the backdrop of the recent Pahalgam terrorist attack, both Pahalgam and Baldal routes have been declared no-fly zones, and the most stringent security measures have been put in place for entry and exit from the area. As the terrorists behind the Pahalgam attack are yet to be tracked down, the impact of the attack is readily visible. Besides hitting the tourist footfall in Kashmir, Yatra registration has also recorded a dip this year. Officials say over 2 lakh people had registered for the Yatra before April the 22nd attack in Pahalgam. Now only 85,000 of them have confirmed their participation. जो लोग 22 अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, उनसे दोबारा हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी यात्रा के बारे में कंफर्मेशन दीजिए। कल तक की जो सूचना है 85,000 से ज्यादा लोगों ने कंफर्म किया है कि हम यात्रा में आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और सफल वापसी का किया है। For the first time, the whole area has been declared as no-fly zone. So there would be no helicopter service for the Amarnath Yatris. This year, massive security deployment, as you can see here in this area, Pahalgam area, right up to the holy cave. In the absence of a helicopter service, it's these ponies and palanquins that are going to be in demand in this year's Yatra. As part of the security measures, every pony that participates in the Yatra is also tagged with radio frequency IDs to track their movement. जैसे कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं और यात्रा भी आती है हर साल। जो ही ये मतलब यात्रा का सिलसिला होता है, लोग तो बेसब्री से इंतज़ार में रहता है, क्योंकि ये हर साल में हमारा एक त्यौहार जैसा होता है। पहलगाम, खास करके पहलगाम के लोगों के लिए, पहलगाम के लोग इसको बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये सदियों से चला के आ रहे हैं। लोकल्स का, पहलगाम के लोकल्स का इसमें अहम रोल रहता है, क्योंकि पहलगाम के बोटा मलकिस ने इसको दरियाफ्त भी किया। जी हाँ, जी हाँ। पहलगाम के जो लोकल्स लोग हैं, इनका अहम रोल इसलिए रहता है क्योंकि लोकल्स यहाँ पे 110% सपोर्ट होता है यात्रा के लिए। जैसा कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो यात्रा में, कोई मतलब ऐसे भी लोग हैं हम में से
जो वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, कोई बुज़ुर्ग होता है यात्रा में जो गाड़ी में चढ़ नहीं सकता उसको बिठाते हैं, या वॉशरूम के लिए रास्ता दिखाना, या किसी जगह कठिन रास्ता, आपको तो पता ही होगा ऊपर का रास्ता कैसा होता है और कैसा कठिन रास्ता होता है, उसमें हेल्प के लिए हमारे लोग यहाँ से पैसे के बगैर जाते हैं वॉलंटरीज। तो आप भी इंतजार कर रहे हैं यात्रा का, और आप अपने घोड़े को यहाँ हाथ में लेंगे। और आपको मैं बताऊँ, यहाँ इनके जियो टैगिंग लगी, टैगिंग है ये कानों पे, ताकि जो रजिस्ट्रेशन इन घोड़ों की, आपने कब करवाई घोड़े की रजिस्ट्रेशन? हमारे तो हो गए हैं कम से कम 20 दिन पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराई है। इसका हेल्थ चेकअप वगैरह सब कुछ? हेल्थ चेकअप वगैरह जो भी होता है यहाँ पर पहले इसी टैग के ज़रिए हम आगे रजिस्टर्ड होते हैं, तो हमें इसी के ज़रिए यहाँ का जो आधार कार्ड होता है वो हमें बना के देते हैं। जो यहाँ के लेबर डिपार्टमेंट है वो हमें पहले पूरा वेरिफिकेशन करा के अमरनाथ यात्रा पर ले जाते हैं। इस साल सबसे अहम बात यह है कि कोई हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, सब सारा जो दारमदार अब घोड़ों पे, पालकी वाले पे। जी बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सर्विस थी वो दोनों साइड से अच्छी थी। उसमें मतलब सारे जो भी कोई मतलब वीआईपी गेस्ट आते थे, ओल्ड एज लोग थे ज़्यादा, तो वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही जाते थे। अब हमारा क्या है, जो घोड़े वाले का तबका है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे हर साल। सो अब क्या है कि अब इस बार जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने ये बताया है कि आपको हर किसी एक घोड़े वाले के पास एक ही घोड़ा अलाउड होगा। वरना आपके पास दो होते थे, एक के पास? जी बिल्कुल, हम हमेशा 2 घोड़े के साथ जाते थे। खासकर जो पहलगाम के लोग हैं, हम काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं इस चीज़ को चलाने में, क्योंकि हम यहाँ साइड सीन भी कराते हैं टूरिस्ट को जो यहाँ पर आते हैं। हम तब भी 2 घोड़ा एक आदमी चलाता है, और अमरनाथ में भी चलाते थे। लेकिन इस साल बदकिस्मती से जो ऑर्डर निकला है, इससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि एक घोड़े पे हम अपने घर को नहीं चला सकते हैं। ऐसा भी एक इशू है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 6,000 घोड़ों ने की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से हो गए, हमको हर साल एक बंदा अपने नाम पे 4 घोड़े रजिस्टर्ड करता था। उसमें मैं एक खुद जाता था, एक हाकर रखता था। 4 घोड़े हम 2 बंदे हैंडल करते थे। इस बार जो है हर किसी, मतलब अभी तक यहाँ तक अगर लेबर डिपार्टमेंट ने 4,000 कार्ड भेजे हैं घोड़ों के, तो 1,000 कार्ड टोटल घोड़े वालों ने लिए हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस के लिए लिया है। बाकी ऊपर जाने के लिए अब सब लोग कतराते हैं, क्योंकि एक घोड़े को खर्चा आता है। हमारे साथ हाकर होता है, सिंपली अगर एक हाकर यहाँ पे एक मजदूर जाएगा दिन भर 700 रुपया मजदूरी को लाता है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है 10,000 रुपये आपको हाकर को देना है, लेकिन उस कठिन रास्ते पे वहाँ पे 20,000 से कम कोई हाकर मानता ही नहीं जाने के लिए। इसीलिए हम 2 घोड़े चलाते थे। एक घोड़े पे हमारा जो घोड़े का खाना पीना, बंदे का खर्चा, एक घोड़ा उसी में चला जाता था। एक घोड़े से हमारी फैमिली चलती थी। इस बार हमारे साथ मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से कि ये हमारी बात आगे तक पहुँच जाए, कि कम से कम इंसाफ। हमारा जो सीज़न होता था, पीक सीज़न अप्रैल मई जून, वो भी चला गया है। अभी मतलब हम भी गरीब लोग, पैसा तो आता जाता रहता है। हमारा इसमें रोल अहम रहता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा जो सबसे बड़ा तबका होता है घोड़े वालों का। लेकिन अब कोई डर वगैरह तो नहीं कि यहाँ आतंकी हमला हुआ? नहीं, डर वार कुछ नहीं। नहीं, आपको यकीन है कि सारा ठीक हो जाएगा? सारा ठीक है, इंशाल्लाह ठीक सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अब हम ये भी चाहते हैं, मतलब घोड़ों का मसला जो है ये अलग मसला है। यात्री के लिए हम मतलब सीना तान के खड़े हैं, यात्रियों को हम कंधे पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहले से ही, मतलब पुराने ज़माने से हमारा एक ये हिसाब किताब रहता था। साल में एक बार यात्रा आती है, इसके लिए सारे लोग यहाँ के एक्साइटेड है, बहुत खुश है, वेलकम करते हैं, दिल से वेलकम करते हैं। तब भी हम इसमें मतलब दिल जान से जान लगा के हम इसमें हिस्सा लेंगे, चाहे हमें गवर्नमेंट ऑर्डर दे या ना दे। घोड़ा तो हम एक लेके जाएंगे, लेकिन तब भी मतलब हमारा जो फॉल्ट है, यात्री के साथ दिल भी है और जी हाँ। देखिए, जो मतलब है, जो नसीब में होगा वो आएगा। पैसा तो आता जाता रहता है इंसान के पास, लेकिन जो इंसानियत है वो हम मतलब कमी उसमें आने नहीं देंगे। On the other side of the cave shrine, around 200 kilometers from Pahalgam, is the Baltal base camp. From here, the route to the cave is much shorter and pilgrims can undertake the yatra in just a single day. Ahead of the yatra, security forces conducted extensive mock drills to test preparedness and coordination among various security agencies. In this simulation exercise, the police and CRPF are seen repulsing a simulated terror attack and neutralizing a threat. Baltal Base Camp is the largest camp for Amarnath Yatris.
normally 10 to 12,000 people stay here, but it has a capacity of around 30,000 people. And let me show you when any yatri enters here. Number one, his RFID, which is the radio frequency ID tag, which monitors the movement of yatri, that is being checked here. And thus most importantly, these cameras, these are surveillance cameras. But I'll show you, these are not the ordinary surveillance cameras. For example, this camera, let's zoom in this camera. It is FRS, it is the facial recognition system. So this is not just like any other ordinary surveillance camera. It has a large database of suspects. So if a suspect moves in this area, these cameras actually, the hooter you can say, will start raising alarm. Officials say it's the strongest ever security deployment for the Yatra this year. The J&K police are coordinating and supervising the security grid. Police say security measures have been taken in accordance with threat perception and challenges posed after the Pahalgam attack. हालिया जो सुरक्षा घटनाक्रम रहा है उसके बाद और जो पिछले साल की बनस्पत जो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग्स होता है तो वी एवरी टाइम ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज लर्निंग्स इनटू आवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. तो हालिया सुरक्षा घटनाक्रम एवं पिछले साल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी अर्धसैनिक जो सुरक्षा बल यहाँ पे हैं या आर्मी जो कि इसमें एक तरीके के मेन सुरक्षा इंतजामात में स्टेक होल्डर्स रहते हैं तो उनके साथ एक बड़ा विस्तृत जो सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं जो कि पहले से उसमें काफ़ी अतिरिक्त जो सुरक्षा बलों का पुट है और काफ़ी इलेबोरेट और बहुत विस्तृत तरीके से डीप डिप्लॉयमेंट्स का सहारा लेके हमने पूरा यहाँ डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी रिलेटेड डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है इस बार. तो कहा जाता है कि दिस ईयर अबाउट 600 एडिशनल कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री हैव बीन डिप्लॉयड बिसाइड्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी, जिससे कहा जाता है हाईएस्ट एवर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट. देखिए नंबर की तफसीलात में जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उसकी विवरण जो है सुरक्षा दृष्टि से साझा करना बेहतर नहीं होता है. बट आपको मैं ये दिलाना चाहता हूँ कि हाँ अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामात बिल्कुल रहे हैं और बहुत से जो गैप्स और लूप होल्स हैं उसको हम लोगों ने अधिक तरीके से कवर करने का एक कोशिश की गई है ताकि आने वाले यात्रियों को जो काफ़ी सुरक्षामय वातावरण हम प्रदान कर सकें और उनकी जो यात्रा है जो अमरनाथ जी होली केव तक वो दर्शन करने जाते हैं उसको सुगम एवं सरल कर सकें. गिवन द फैक्ट दैट वी हैव दिस टेरर अटैक जो पहली बार हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विस हैज़ नॉट बीन अलाउड टू ऑपरेट, तो इज़ इट जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स कि जो पूरा इलाका है इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नो फ्लाई जोन? We have also seen the orders regarding that no flying zone. There seems to be some reason on that which it is not appropriate for me to divulge the exact reasons since it has started with no flying zone. So accordingly we have made elaborate security arrangements and accordingly advisories are also given to be it to yatris also and also to the security forces so that this no flying zone orders or instructions are respected by both of them. तो आई सेटिस्फाइड कि जो कोऑर्डिनेशन हो या दूसरी चीज़ें हैं तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की और अलर्टनेस इन द रन अप टू द यात्रा? You would realize that rehearsals and mock drills these are the tools to have more refined coordinative capacities among numerous security forces. As you know that there is not only single security force here, it is an amalgam of lot of security forces. So these drills do helps us in coordination issues and also helps us in getting them aware of their taskings and how to respond to the various contingencies effectively. तो कुल मिला के अगर हम ये यात्रा देखें और पिछली यात्रा, क्योंकि इस यात्रा में हमें एक आतंकी हमला इससे पहले हुआ उसी रूट पे, पिछली बार लग रहा था कि आतंक ख़त्म हुआ है. इस दिस यात्रा क्या ये ज़्यादा चैलेंजिंग है ये यात्रा हमारी?
मान लीजिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और कि जो पहली जो रजिस्ट्रेशन थी उससे कम हो गई है, तो इज इट चैलेंजिंग? क्या चैलेंज? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ें वाकई कई बार चुनौतीपूर्ण होती हैं, बट उसी हिसाब से हम लोगों ने अपना प्लानिंग और वो करा है, तो लिहाजा हम काफ़ी आशान्वित हैं कि हम इस चुनौती का अच्छे से सामना कर पाएंगे। The Jammu and Kashmir government is organizing free bus services for yatris from Jammu to Pahalgam and Baltal base camps. All along the route, the Yatra convoy will be escorted by security forces, and even those who choose to travel in their own vehicles will have to be part of the convoy for security reasons. जो पिछले 8 हफ्तों में हमने देखा है, उसके बाद ये स्पेशल मुझे लगता है यात्रा हो जाती है, और सारे अफसर थे, डी साहब आपके अवेलेबल थे, मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, फूड डिपार्टमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, सारे डिपार्टमेंट्स के अफसर्स मौजूद थे, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट के हमारे बंदोबस्त हैं। वी आर सेटिस्फाइड। फिर आपके लंगर अरेंजमेंट्स पे चर्चा हुई, फूड सप्लाईज़ हमारी सफिशिएंट मात्रा में हमने यहाँ डंप की हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी उसका भी प्रावधान रखा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने अलहदा गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, श्रीनगर से यहाँ बेस कैंप से लेकर ऊपर तक, और जम्मू से भी यहाँ लाने का बिल्कुल उसका जिम्मा हमेशा हमारा होता है। वी हैव कितनी गाड़ियाँ हैं जो आपने यात्रा के लिए जो आपके महकमे के अंदर? देखो, इट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पीपल। वो देयर इज नंबर इज़ नो इशू। अगर कोई अंदाज़ा, देखो 300-400 गाड़ियाँ तो हमारी ऑलरेडी स्टैंड बाई रहती हैं, तो अगर हमें किसी रूट से भी गाड़ियाँ इधर उधर करनी पड़ेंगी ताकि यात्रा अच्छी हो जाए, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। और दूसरा, शेल्टर्स और पोनीवालास के इश्यूज़ डिस्कस हुए। एक और इशू जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, दैट इज़ क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है। जैसा कि बताया जा रहा है, थोड़ा मौसम शायद बारिशों का थोड़ा बन पाता है या बन रहा है, दिख रहा है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। फिर आपका जनाब हेल्थ और मेडिकल की जो हमारी इक्विपमेंट्स कैसे हैं, या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स कैसे हैं। फिर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे यात्रियों को जाना है 100% इस बार एक जो नो फ्लाई जोन किया है, वो भी एक विषय है। हाँ, उससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब फ्लाई हेलीकॉप्टर में कोई अब नहीं कर। आर्मी इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी evacuation. वी हैव टॉकिंग टू देम, वो हमारी मदद करेंगे। उसके बावजूद एम्बुलेंसेस अच्छी मात्रा में यहाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं आपको बालन जिसे आप कहते हैं, फायरवुड की, वो भी मैं चेक करके आया हूँ। फिर इन केस ऑफ आईटी और सोलर की जहाँ जहाँ वो श्राइन बोर्ड कर रहा है, लेकिन जो डार्क स्पॉट्स रहते हैं, अगले 1-2 दिनों में हमारे ऑफिसर्स वहाँ भी जाएंगे, वहाँ अगर ज़रूरत है लाइट्स की, सोलर्स की, वो भी प्रोवाइड किया। मैं अभी तक के इंतज़ाम से सेटिस्फाइड हूँ। तो आम लोगों की भूमिका क्या है इसमें, क्योंकि जो आम लोग हैं वही तो कश्मीर के मुसलमान ही इस यात्रा को शुरू से रहता है। पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सबसे पहले हमारे यहाँ के आम जो लोग थे, उन्होंने वो आगे बढ़कर साथ दिया, वो आगे आए। तो मुझे लगता है सबसे अहम रोल उन्हीं का रहता है, जो हिंदुस्तान से सारे यात्रियों का वेलकम, दोनों हाथ जोड़कर वेलकम करते हैं, और इस यात्रा को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहता है। मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा, और यात्रियों से भी कहूंगा कि अगर आपने दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देना है तो आपको भारी मात्रा में आना है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका अनफिनिश्ड एजेंडा होता है। यार, वी हैव स्टॉप्ड बाय टेररिज्म, वी आर हिटिंग देयर टूरिज्म, वो भी नहीं होना चाहिए, और हमारी आस्था जो है उसमें कोई रुकावट नहीं हमें आने देनी चाहिए। The cave shrine, at an altitude of 12,756 feet in the Himalayas, was discovered by a Muslim shepherd, Bhuta Malik, in 1850. In fact, till 2005, the Maliks were part of the management of the Yatra and cave shrine before the Sri Amarnath Shrine Board fully took over. The Yatra continues to represent the syncretic tradition of Kashmir. It's local Muslims who carry the yatris on their shoulders, organizing accommodation and items to perform the pilgrimage. यात्रियों के लिए यहाँ सैकड़ों टेंट लगाए गए हैं ताकि उनके रहने का इंतज़ाम हो।
और ये टेंट यहाँ के मुसलमान लगाते हैं। बात करते हैं इन लोगों से। भाई आपका क्या नाम? मेरा नाम मेहराजुद्दीन खान। आप भी यहाँ के टेंट लगाया? जी सर। तो यात्रा का इंतजार होता है आप लोगों को? जी सर, तैयारी चल रही है इंशाल्लाह। हाँ, बिस्तर नए लाए, सब कुछ जो रजाई वजाई पूरे नए हैं, और टेंट भी आप देख सकते हो पूरे नए हैं। ऊपर से डबल तिरपाल डाला हुआ है सर। हाँ, पूरा इंतजाम ताकि है, बारिश की सूरत में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। तो कितने साल से आप यहाँ टेंट लगा? 45 साल से। 45 पहले साल। मैं आपका शुभ नाम? अब्दुल गफार है ना। हाँ। मैं 45 साल से पहले था, मैं 5 तारीख से आ गया है। फिर 1 साल था मैं गुफा अब में। यहाँ हाँ, गुफा हाँ। में भी आप रहे? तो 1 साल, तो उससे बाद में यहाँ पर गया। ये 25 यात्रा साल आपके लिए कितनी अहम है? बहुत से अच्छे, मुसलमान, बहुत से हिंदुओं अच्छे। की यात्रा का हाँ, नहीं इंतजाम। नहीं, मुसलमान हिंदू नहीं यहाँ पर है, बहुत से अच्छे हैं, यात्री भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, इनकी सेवा अच्छा करता है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो आपको खुशी थी, इंतजार करते हो? बिल्कुल, मैं खुशी करता हूँ इनसे आने में। हम इंतजार रोजगार भी आपका मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल रोजगार मिलता है इंशाल्लाह। हाँ। उम्मीद है रोजगार का इंशाल्लाह। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी नहीं, फौजी का भी, पुलिस का भी, किसी का प्रॉब्लम नहीं मुझे यहाँ। तो 45 साल से आप कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, 35 साल से, 35 साल हो गया हमको यहाँ पर, यहाँ पे? यात्री को। हाँ, हाँ। यात्री ड्यूटी को। ओके, क्या बात है। और आप तो बिल्कुल, आपकी उम्र भी उतनी नहीं होगी। आपकी उम्र कितनी है? कितने साल मेरे से? साल 19 साल है सर, 19 प्लस। तो कब से आप यहाँ आए? मेरे हो गए 3 साल सर। 3 साल से जी आए। सर। तो यात्रियों की सेवा करते हैं, अच्छा लगता है? आज तक तो किया है, किसी का शिकायत नहीं आया सर, जितने भी हमने किया तो और आगे खुशी भी से नहीं? आ गए। हाँ, खुशी से आए, खुशी से गए। तो यही है दरअसल इस यात्रा की असल कहानी की। यहाँ वो कहते हैं सिंक्रेटिक कल्चर या गंगा जमनी तहजीब का अगर हम देखेंगे तो इस यात्रा में है। As the Yatris walk up to the holy cave, it will be the triumph of faith over terror, a win of harmony over the horror. With camera person Amir Amin Bhatt, Nazir Masoodi for NDTV.